my question is related to what you in your maiden budget. You are focusing, you are putting more premium on crops economy, or creating assets in the form of industrial units. Sorry, you'll have to speak a little slowly. I didn't hear you. You're putting more emphasis on? Sir, you are putting more premium on what? Agri economy or crops economy, or creating assets in the form of industrial units in your major budget. What is your focus? Agri-economic crops. Oh, okay. No, our emphasis is not on one particular sector. Our emphasis is on taking J&K forward in a balanced manner, focusing on asset creation, focusing on improving the economy. In improving the economy, we want to focus on all three sides. The primary sector of the economy, the secondary sector, and the tertiary sector. So that means manufacturing, services. We have looked at all of these. I talked about growing the industrial base of Jammu and Kashmir, starting and expanding our industrial manufacturing areas. I have talked about the startup policy and giving a boost to entrepreneurship. There's also a renewed focus on agriculture and horticulture. Tourism is a major sector of our economy. We are looking to grow tourism arrivals both in Kashmir as well as in Jammu. Horticulture, of course, is an important facet of our economy. So it would be wrong on anybody's part, including mine, to make the case that we are focused purely on one part of the economy. That is on the economic side. On the governance side, as I said, there are initiatives for improved governance, for asset creation, and for improving the social network, the social net that is available to our weakest sections of society. Question from them. Look, I am Anubhav from PTI. Mursa, you have showcased a lot more programs in your budget. One important factor that we generally talk about is the agriculture or tourism-based economy of J&K. But never has the focus gone to the hydropower, which is the biggest economy in terms of, in fact, it can be 20,000 crores economy for J&K. You have spelled the new hydropower policy for this thing. Can you specific about the projects, particularly private projects? Actually, in my budget speech, I said that we are formulating a new hydropower policy. It is currently at the formulation stage within the Power Department. And as soon as we have the policy, the framework of the policy is ready. It's just that it has to be added to. Once the policy is ready, it will be put before the people. But the aim of that policy, again, is to focus on both the generation side, so that we have greater generation, and also on the distribution, transmission and distribution side as well, so that the losses that we have in our transmission and distribution system, those are also brought down. Next. हेलो, उमर विनोद बोल रहा हूँ मैं गुलिस्तान न्यूज चैनल से। नमस्कार। मैं बजट एक क्लास पढ़ रहा था, उसको देख करके मुझे लगा कि हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 19% है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसकी वजह क्या है? फ्रीबी या फिर सोशल सिक्योरिटी? एक सवाल ये मेरा। दूसरा, आपका जो सैलरी कंपोनेंट है, वो इस साल कम रखा गया है और पेंशन कंपोनेंट भी कम है। जब सैलरी कंपोनेंट आप कम रखते हैं, इसका मतलब है कि आप रोजगार, सरकारी नौकरी इस साल नहीं दे सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। और ओवर साहब, एक सवाल मैं लास्ट में आपसे करना चाहूंगा, लास्ट में एक मौका मुझे दे दीजिएगा। ये 2 सवाल थे। चलिए, पहले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कम नहीं हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप देखें तो 24-25 जो हमारा आरई है, वो 27,544 है। जो हमारा 25-26 का बीई है, बजटेड
ये है 32,607, तो इसको बढ़ाने की बात है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कमी हुई है, जिसके लिए फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने आपको पहले ही समझाया है। वो इसलिए है कि हमारी पुलिस की बजट और पुलिस पेंशन जो है वो जम्मू कश्मीर की बजट से हटा के मरकजी होम मिनिस्ट्री की बजट में डाला गया है, इसलिए इसमें कमी आई है इस बार। इस बार जो सैलरी कंपोनेंट है वो कम हो गया है। कम हो गया है। पिछले साल था 27,930 करोड़, अभी आपने जो प्रपोज किया है 23,896 करोड़ है। इट मीन्स कि आप रोजगार नहीं देने वाले हैं या असामियां जो खाली है वो नहीं भरने वाले। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए ना। पिछले साल की सैलरी में जो हमारी पुलिस है उनकी सैलरी बिल इसमें शामिल थी। इस साल वो सैलरी पुलिस कंपोनेंट जो है वो हमारे बजट से हटा के मरकजी बजट में डाला गया है, इसलिए वो निकाल के ये नंबर कम हुआ है। एम्प्लॉइज की तादाद कम नहीं हुई है, एम्प्लॉइज की तादाद बढ़ेगी, घटेगी नहीं, लेकिन सैलरी कंपोनेंट कम हुआ है क्योंकि वो हिस्सा जो हम पुलिस को तनख्वाह के तौर पे देते थे वो अब हमारे बजट से हटा के मरकज की बजट में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। गुड इवनिंग सर, रोहित शर्मा टेक1 चैनल से। सर डेली वेजेस के लिए पूछना चाहूंगा, उनका बड़ा लंबे समय से इंतजार था। दरअसल जब यहाँ से बाहर जाएंगे वो हमें पूछेंगे, जब हम कल उनके प्रोटेस्ट में उनकी कवरेज करेंगे एसपी उसको लेकर। पिछले दिनों आपके एक ट्विटर हैंडल से पोस्ट डाली गई जिसको क्लैरिफिकेशन दी गई, लेकिन सवाल उनका जो है वो आप तक पहुंचाने के लिए वो हमें मेडिएशन चूज करते हैं। क्या कुछ उनके लिए निकल कर आ रहा है? सर एडिशन करूंगा AA वाइज के लिए जो आपने बजट लाया है, नो डाउट बहुत ज्यादा बेनिफिट उनको मिलेगा, बट डोंट यू थिंक सर कि बीपीएल्स का जो पैरामीटर सेट किया गया है उनको एक बार फिर से सर्वे करने की जरूरत है, ताकि जो APLs में आज की डेट में फॉल कर रहे हैं वो इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। अब जहां तक डेली वेजर्स और इनकी बात है, उनके लिए पॉलिसी हमें बनानी होगी। पहले तो ये है कि हमें उनका नंबर तय करना होगा, क्योंकि आप जिससे बात करें नंबर बदलता रहता है। कहीं पे भी एक नंबर हमारे पास है नहीं। जब हमारे पास नंबर होगा उसके बाद उनके लिए हमें क्या पॉलिसी बनानी होगी वो हम तय कर सकते हैं, लेकिन जरूर उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और जहां तक आपने AAY और BPL वाली बात की, जैसे मैंने शुरू में कहा, हमारा फर्ज है कि जो सबसे ज्यादा मदद के हकदार हैं उनको मिलना चाहिए। तो इस बजट में सोच समझ के हमने AAY को जो है मदद की। अब आगे जाके जैसे हमारी माली हालत जो है बदल जाएगी, जिस तरह वो नए प्रोजेक्ट्स, पावर प्रोजेक्ट्स हमारे जो ऑन स्ट्रीम आ जाएंगे, उससे हमारी कमाई बढ़ेगी और कुछ इकदाम उठाए जाएंगे जिससे हमारी कमाई बढ़ेगी। उसमें फिर हम जो BPL कैटेगरी के लोग हैं उन्हें भी जो फायदे गवर्नमेंट की तरफ से मिलने चाहिए उनको भी इनमें शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट फ्रॉम दैट साइड प्लीज। You can have from this side. गुड इवनिंग सर। सर मेरा दो छोटे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि क्या सरकार NPS एम्प्लॉइज के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम जो है रिस्टोर करेगी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपने अपने बजट में काफी वेलफेयर मेजर जो अनाउंस किए हैं, क्या जो एक्रेडिटेड और नॉन एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट है उनके लिए भी कोई वेलफेयर मेजर अनाउंस करेगी सरकार, जस्ट लाइक पेंशन, इंश्योरेंस एक्सेट्रा इत्यादि इत्यादि। न्यू पेंशन स्कीम का उसमें तो कोई बदलाव नहीं। ओल्ड पेंशन स्कीम के मुलाजिम जो है वो ओल्ड पे रहेंगे, जो नए मुलाजिम लगे हैं वो न्यू पेंशन स्कीम पे होंगे, और इसमें कोई बदलाव लाने की बात नहीं है। जहां तक जर्नलिस्ट के पेंशन वगैरह की बात है, मैं ईमानदारी से कहूँ हमने इसके बारे में सोचा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसे मतलब आइडियाज हैं जो आप शेयर कर सकते हो, उसमें फिर आप देख लीजिए ना कितना बर्डन आप उठाने के लिए तैयार हो और कितना आप हमारे ऊपर डालने के लिए कितना चाहते हो। वहां से क्वेश्चन फिलहाल प्रेस क्लब की मैंने बात की, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक वाइब्रेंट प्रेस जो है वो कायम हो। जम्मू का प्रेस क्लब चल रहा है शायद, लेकिन
श्रीनगर में चल नहीं रहा। श्रीनगर का प्रेस क्लब दोबारा चले, उसके लिए इकदाम उठाए जाएंगे। Mursab, good evening. Hakeem Irfan from Economic Times. Mursab, did this fare rebate for the women? You said zero fare for the women. So we see that the public transport, especially the SRTC, is in shambles, especially when we talk about districts, inter-district connectivity and all. So will it reach to the grassroots really, number one? And number two, the opposition has termed this budget as something which is a love letter to the BJP. Some have called it a deception because of the broken promises of the elections. How do you respond to that? And lastly, also I say you started your budget speech on a very pessimist Persian proverb, which is often used when the situation is irreparable. So, do you still consider what you told in Delhi recently, that